Hello everyone, myself Samad Singh again in front of you people in order to bring out the next lecture in our economic series, and that is a wonderful initiative of Udan IAS. Chalo. Acha, so what we majorly had discussed in the last of the class is that we had a certain kind of discussion on SLR. ठीक है, SLR के ऊपर हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था किसमें, लास्ट क्लास में. ठीक. अच्छा, what we will be doing in this class is that we will be discussing regarding the second kind of reserves that could be out there, second kind of way in which, ठीक है, second kind of way in which I can control the reserves of the bank, and that way is majorly your CRR, that is your cash reserve ratio, that is your cash reserve ratio. ठीक, cash reserve ratio. Now see, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज योर SLR में मैं क्या करता था, SLR में जब भी मैं बात करता था आई टोल्ड यू, ठीक, दैट इज SLR में इफ आई कैन मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज योर CRR एंड व्हाट इज योर SLR. ठीक, देखो, इफ आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग this, just wait a second. हाँ, okay, if I'm telling you regarding what was there in SLR and what is there in CRR, you will be able to understand this thing in a very comprehensive manner. Now see, if I'm telling you that is SLR में हमने क्या बोला था, SLR में हमने बोला था that is there will be three components of maintaining SLR. ठीक, number first was obviously your cash, number second was your gold, and number third was your approved securities, approved government securities. That is, in order to maintain certain kind of safety net, the RBI is obligating what? RBI is obligating the scheduled commercial bank that they have to maintain cash, gold and securities. Okay, in around 18% of NDTL, 18% of net demand and time liabilities. ठीक है. अच्छा, CRR भी इसी तरह का क्या है, it is also a certain kind of way in order to maintain reserve, but here I am not considerate about gold and approved securities, and rather I am saying only cash will be kept with what, that is RBI. ठीक, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश द बैंक्स आर कीपिंग विद द RBI, एंड देन दे आर क्या कॉलिंग इट एज व्हाट, दैट इट इज माय कैश रिजर्व रेशियो. क्यों बोलते हैं कि ऑब्वियसली इट इज अराउंड, जैसे इसमें मैंने बोला था ना SLR में क्या था, SLR में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट वाज अराउंड 18% ऑफ NDTL, इट वाज अराउंड 18% ऑफ NDTL. ठीक, अच्छा, मैक्सिमम कितना जा सकता था, लेस देन, इट हैज टू बी नेट लेस देन क्या, 40% ऑफ द NDTL. ठीक, सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CRR में क्या होता है, CRR में वी आर कीपिंग द वैल्यू एज 4.5% ऑफ योर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज योर NDTL. ठीक है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज योर NDTL. ठीक, सो जितना भी मेरे पास NDTL है, ठीक, उसका 4.5%, दैट इज 4.5% ऑफ दैट आई हैव टू कीप विद व्हाट, दैट इज बैंक, सो दैट आई विल बी ensuring that is certain kind of reserve is kept with what, is kept with RBI. That is first and the foremost thing that you majorly have to understand. अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, दैट इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट SLR में आई टोल्ड यू इफ द बैंक इज कीपिंग इट्स रिजर्व्स in SLR, so that majorly means that it will be liable to get certain kind of what, certain kind of interests as well. It will be liable to get certain kind of interest as well on their deposits, but CRR में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ठीक, CRR में you will not be getting any interest, no interest from RBI. So there will be no interest in CRR. ठीक है, CRR जस्ट क्या, आपने 4.5% ऑफ योर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज यू हैव केप्ट विद द RBI, और उसको भूल जाओ. ठीक, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. ठीक है, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट. इट इज डन इन ऑर्डर टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ सिक्योरिटी नेट, अ सेफ्टी नेट फॉर द बैंक इन केस ऑफ सर्टेन ऑफ द इमरजेंसी इफ इट अराइजेस. ठीक, नाउ सी, ठीक, इतना मैंने बताया था आपको.
ठीक, इन द लास्ट क्लास, एंड सीआरआर मैंने अभी बताया दैट व्हाट इज दिस सीआरआर ऑल अबाउट। ठीक, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम पीपीटी एज वेल। ठीक, मैंने क्या बोला, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो में इट इज मिनिमम परसेंटेज of bank's demand and time liabilities that a scheduled commercial bank is obliged to deposit with the central bank in the form of cash। ठीक, तो इसमें सिर्फ कैश में ही जमा होगा और किसी फॉर्म में जमा नहीं होगा। ठीक ठीक, आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट on CRR balances, that I have already told you, that is CRR में you are not obliged to get any interest from RBI। ठीक ठीक, अच्छा, द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रेंज फॉर फिक्सिंग द सीआरआर। ठीक, जैसे इसमें अगर मैं बात करता हूं एसएलआर में देयर वाज अ पर्टिकुलर रेंज एज वेल दैट इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग क्या 40% ऑफ एनडीटीएल। ठीक, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीआरआर में ठीक है, देयर इज नो रेंज, देयर इज नो लिमिटेशन। ठीक, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसएलआर में दे हैव स्पेसिफाइड सर्टेन काइंड ऑफ रेंज ओवर दिस। ठीक, सो दिस थिंग यू मेजरली हैव टू रिमेंबर। ठीक, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मनी सप्लाई आरबीआई इंक्रीजेस द सीआरआर एंड वाइस वर्सा। दिस इज वेरी सेम थिंग विच आई हैड टोल्ड यू इन द लास्ट ऑफ द क्लास, दैट इज फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीआई। ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज बैंक एंड दिस इज masses, that is public। ठीक, now if I am saying bank have to absorb money, that is if it has to reduce the liquidity. So if I want to reduce liquidity in the market, if I want to reduce liquidity in the market, if I want to reduce liquidity in the market, what I will be doing, I will be simply क्या increasing the CRR requirement। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग आउट ऑफ 100 रुपीज, इफ आई एम सेइंग माई वैसे 4.5% के आसपास सीआरआर इज आउट देयर, बट एज्यूम इट टू बी 4। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, कितना बचा, 96 बचा। ठीक, ऑब्वियसली अभी मैं आई एम क्या एज्यूमिंग कि एसएलआर को मैं काउंट नहीं कर रहा, इसमें से एसएलआर भी सबट्रैक्ट होगा। ठीक, सो आई एम सेइंग दैट इज इफ आई एम keeping my CRR as 4, ठीक है, तो 96 क्या बचा, 96 is the amount that is left for the bank to lend out to public। ठीक, now if I am saying that is my CRR has been increased to 5%, so I will be saying 5 बचा, अब यहाँ पे how much the bank is left with, that is 95 in order to give it to the public। ठीक है, so I can say that as I am increasing CRR, with the increase in the CRR, my liquidity will reduce, and if my liquidity will reduce, I can say that I can use it as a way to counter inflation। ठीक है, I can use it as a way to counter inflation। ठीक, similarly if I'm talking about if I can reduce CRR, that means I am increasing the liquidity, and if I am increasing the liquidity, I can say that it can be used in order to infuse inflation, or I can say that it can be used to counter what, recession, मंदी को काउंटर करने के लिए, counter recession, that is people should be having more money, है ना। So that is how your CRR can be used to do what, that is to regulate the liquidity in the market। But still, if I'm comparing this mechanism with the mechanism of SLR, CRR is not widely used। Usually the RBI is playing with SLR requirement, it is usually not playing with CRR requirement। ठीक है, so if I can say that, I can say that is in order to regulate the liquidity in the market, ठीक है, that is SLR is more used while your CRR is less used। So you should be remembering this thing, CRR is less used। ठीक, so this point is clear, that is in order to decrease the money supply, RBI can increase the CRR and vice versa। ठीक, initially CRR was quite high, but gradually over the period of years it has been reduced। अच्छा, इसलिए था क्योंकि पहले we were more protectionist economy, हम लोग थोड़ा सा डरते थे, है ना, but now over the period of time we had majorly क्या become more liberal। तो धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, around it has been that CRR requirement had come
डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक. CRR एज ऑफ नाउ क्या स्टूड एट क्या 4.5% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. तो अभी के डेट पे क्या है आपका CRR क्या है अराउंड 4.5%. अच्छा, एक और चीज है दैट इज फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैड डिस्कस्ड इन योर वॉट इन योर ये SLR में, दैट इज इफ द बैंक इज नॉट एबल टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ SLR रिक्वायरमेंट, दे वर क्या लाइबल फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पेनल्टी. Similar kind of penalty is applicable in CRR as well. Okay? So if scheduled commercial bank fails to maintain CRR as fixed by the RBI, it is liable to pay 3% per annum above the bank rate on the shortfall amount. ठीक. सो जितना भी आप CRR मेंटेन नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल द बैंक वॉज सेइंग दैट इज आउट ऑफ 100 रुपीज यू हैव टू मेंटेन 6 रुपीज एज योर CRR. ठीक. बट यू हैव बीन एबल टू मेंटेन ओनली 4 रुपीज एज योर CRR. दिस वॉज रिक्वायर्ड, बट दिस इज क्या यू हैड मेंटेन, यू आर एबल टू मेंटेन, यू आर एबल टू मेंटेन. सो कितना लगेगा इसमें शॉर्टफॉल का 3% प्लस बैंक रेट. सो आई विल बी सेइंग दैट इज 6 - 4. शॉर्टफॉल इतना है 6 - 4. ठीक. एग्जाम्पल के तौर पे 6 - 4. ठीक. शॉर्टफॉल इज 2 रुपीज. सो जितने भी रुपीज का शॉर्टफॉल है, ठीक है, उसमें उस अमाउंट में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड बैंक रेट प्लस 3%. बैंक रेट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, बैंक रेट प्लस 3% का इंटरेस्ट लगा के वॉट एवर द अमाउंट यू विल बी गेटिंग. ठीक. दैट विल बी द पेनल्टी फॉर अ बैंक इफ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CRR. ठीक. सिमिलरली इफ द शॉर्टफॉल कंटिन्यूज फॉर क्या नेक्स्ट सक्सीडिंग डे. ठीक. अगर अगले दिन भी क्या ये CRR का ये तो पहले दिन का है, दैट इज ऑन फर्स्ट डे 3%. बट इफ इट इज सब्सिक्वेंटली क्या prolonging for other days as well, so this 3% will become 5%. ठीक है. So इसकी जगह क्या हो जाएगा in the next of the instance, it will be what? It will be 6 - 4, that is 2 into bank rate plus 5%. So if the condition are subsequently not met, तो 3% से बढ़ा के मैं कितना कर दूंगा, I will be doing it for 5%. ठीक है. So that is what your entire of the CRR का requirement was all about. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना. आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे. एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, and after that we will be ending the class. Now see, the question is of UPSC 2010. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक. व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज दैट मीन? बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है 2010 का. ठीक. व्हाट इज दिस टुच्चा सा क्वेश्चन ऑल अबाउट? इफ CRR मेरा बढ़ गया, इफ CRR हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, सो व्हाट इज द केस? द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड. ठीक. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड. नो. यूनियन गवर्नमेंट बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड. नो. ठीक. कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड. नो. ठीक है. सो व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस द इंक्रीज इन द CRR, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक. CRR बढ़ गया तो अब क्या मेरे पास NDTL रिक्वायरमेंट क्या हो गया? ठीक, कम हो गया. मतलब NDTL जितना भी था, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 रुपीज, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज आउट ऑफ 100 फ्रॉम 4 to 5 रुपीज your CRR has increased, so my lending capacity has decreased from what? From 96 to 95. ठीक है. तो CRR बनाने से बैंक के पास पैसा है, ठीक है, दैट विल रिड्यूस. ठीक है, दैट विल रिड्यूस सो दैट इट कैन क्या लेंड इट टू द पब्लिक. सो कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड एंड दैट इज द आंसर. ठीक. आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे. रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास. ठीक. और जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों के साथ क्या छोटा सा अपील कर देता हूं क्या, दैट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ठीक. उड़ाना इसका चैनल, बिकॉज इफ यू पीपल डू दैट इट रियली हेल्प्स टू कीप अस मोटिवेटेड. So thanks a lot, and yes, if you want to join my channel as well, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप, if you want to join, obviously you can do that. That is Sammy2908 पे you can always connect with me. ठीक. Lot of my students are part of this initiative. ठीक. So आज की क्लास के लिए इतना ही. Rest will be doing in the next of the class. और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. Why? Because UPSC is not a game of IQ. It is a game of EQ. चलो बाय बाय बच्चा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.